morning, everyone. How was your weekend? अच्छा ना हमारे तो सभी दिन वीकेंड ही है ना कहाँ दौड़ धाम करके तैयार होना है, फिर ऑफिस जाना है, क्या बस every day is a Saturday and Sunday, right? And then also we all are planning our day, we all are organizing our day कि क्या क्या activities करनी है, so that's so good, right? Okay, चलो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम प्रेयर करेंगे, so please both the hands together, both the shoulders at the back, both the elbows in one line. You don't have to drop the elbows. Put it like this. Neck relax. Close your eyes and normal breathing. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vaidyakena yopakarotam pravaram munina पातांजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम्। So, after getting all the blessings from Rishi Patanjali and our God, Almighty God, let us start our session. आज हम कहाँ जाएंगे पता है? आज हम एक घर में जाएंगे जहाँ पर दो सिस्टर रहती हैं और एक का नाम है मान्यता और दूसरी सिस्टर का नाम है अवसर। और जैसे जैसे मैं बातें करती जाऊंगी तो आपको उससे तय करना है कि आपको किसके पास ज्यादा रहना है, मान्यता के पास ज्यादा रहना है या अवसर के पास ज्यादा रहना है। ओके, सो व्हाट वी विल स्टार्ट इज, पहले तो हम थोड़ा वार्म अप हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे? Both the shoulders at the back, both the legs apart, and then both hands up and down, with heels up and down. And when you raise your hands, inhale, hands down, exhale. "25 times. 25 times you have to raise your hands and lift your heels. Inhale and exhale with inhalation and exhalation. With inhalation and exhalation. Very good, very good. Keep it up, keep it up. एक तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतने सुबह सुबह उठ जाते हो, that's really very good. और जो लोग बाद में भी करते हैं, even that is more अच्छा है, more good, because उनको मन में ऐसा तय किया है कि आज तो योग करना ही है। तो हमारी जो एसवीपी की टीम है, जो लिंक आपको भेजती है यूट्यूब की, उसके कहीं लोग उसको फॉलो करते हैं, so that's really good. हो गया आपका 25 times up and down. Okay, now lock your fingers, both the elbows straight, don't drop your elbows, both the elbows straight, go to your right and left, turning and twisting again, 20-20. So B's bar right side, B's bar left side, right and left, right and left, right and left. ये आपको ज्यादा करना है क्योंकि आज हम स्टैंडिंग आसनास करने वाले हैं। तो स्टैंडिंग आसनास में भी जो परिवृत्त करेंगे, जैसे परिवृत्त त्रिकोणासन है, परिवृत्त पार्श्वकोणासन है, कितने सारे हम आसन ट्विस्टिंग वाले भी करते हैं स्टैंडिंग आसनास में। तो आपको ये ट्विस्टिंग अभी जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर लेना है क्योंकि आपका जो thoracic region है that needs to be activated and your lumbar part, lower back वाला part, right? Good, good, good. तो मैं बात कर रही थी कि दो बहनें हैं, one is मान्यता and the other sister's name is अवसर। अब जो मान्यता लड़की है उसने ऐसा सोच लिया है कि जो भी कुछ हो रहा है बस उसको मान लेती है। अगर घर में किसी ने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो वो मान लेगी कि ये गुस्सा वाला ही है, हर बार ऐसा ही करता है। हाँ, सिंपल। ओके, हो गया आपका टर्निंग ट्विस्टिंग। ओके, now what we are going to do is both the legs apart and heel out,
Let me show you my heels. Yes. Can you see that? Both the heels apart और दोनों पैर मैंने बहुत दूर रखे हैं. Okay. तो दोनों पैर दूर रखे हैं. What you have to do is put your right leg out. Can you see that? My right foot, right leg out and left leg in. Can you see my left foot? And whenever you are putting your right leg out, your upper body should not go to your right. It should be in the middle. ठीक है? हो गया आपका? ये right leg out, left leg in. Both the shoulders at the back. And what you have to do is go to your right. पहले इतना ही जाना है, क्योंकि अगर ज्यादा जाओगे तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा. And you don't have to do that. So what we are going to do is धीरे-धीरे जाना है, धीरे-धीरे जाना है. And this part of my left shoulder is at the back. आपको यहाँ पर रुकना है, 2 मिनट तक रुकना है. तो वो जो मान्यता है वो सबको मान लेती है कि भाई ये गुस्सा वाला है. अच्छा, फिर वो स्कूल जाती है. अब स्कूल जाती है और मैथ्स का पीरियड आया, तो मैथ्स के जो सर है वो थोड़ा कुछ नया सिखा रहे थे. चलो आज मैं एक नया चैप्टर आपको सिखा रहा हूँ और उसमें थोड़े नए सम्स हैं, तो वो आपको करने हैं. अब एक सम गया तो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आता. और बाजू में देखा तो वो लड़की तो अच्छी तरह से कर रही थी, तो उसने मान लिया कि ये मुझे नहीं आएगा. दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन डू इट. उसने ऐसा मान लिया. आपका टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है, टाइमर रखा है मैंने. हाँ, सो बी इन योर आसन. फिर क्या हुआ कि वो उसकी सिस्टर थी अवसर, वो उसी की एज, क्योंकि दोनों ट्विंस थे तो वो उसी की एज की थी. तो अवसर भी सेम क्लास में बैठी थी और कहीं दूर बैठी थी, दोनों साथ में नहीं बैठे थे. तो अवसर ने भी देखा कि अरे आज तो नया चैप्टर है, अरे वाह कुछ नया सीखने को मिलेगा. ओके, तो फिर उसने बाजू में देखा कि अरे ये तो बढ़िया कर रही है, वेरी नाइस. और सर ये कुछ कह रही मुझे नहीं समझ में आता. ओह नो, क्या करूं मैं? कोई बात नहीं, मैं सर को पूछ लेती हूँ. तो फिर वो खड़ी होती है, एक्सक्यूज मी सर. तो सर ने कहा हाँ बोलो बेटे. तो उसने कहा कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने ये क्या मल्टीप्लिकेशन किया और ये क्या डिवाइड किया, आप प्लीज मुझे समझा दो ना. सर ने कहा बढ़िया है, चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं. क्लास में और भी कई सारे लोग होंगे, तो किसी ने तो मुझे पूछा ही नहीं और आपने पूछा, दैट्स वेरी गुड, चलो मैं फिर से समझाता हूँ. और सर ने फिर से समझाया तो उसको समझ में आ गया. सो व्हाट शी डिड, उसने एक अपॉर्चुनिटी ली और ऐसा बोल दिया कि भाई मुझे समझ में नहीं आता. वो जो है रिलैक्स, नाउ राइट लेग इन, लेफ्ट लेग आउट. तो ये दो बहनों की स्टोरी आज हम पूरे क्लास में करने वाले हैं. आपको सोचना है कि आपको कौन सी सिस्टर के साथ आपका अच्छा सेट होगा. आप भी मान्यता के साथ बैठोगे, मान्यता की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आपसे मैच होती है तो आप मान्यता के साथ बैठो, और जिनकी थिंकिंग प्रोसेस होती है अवसर के साथ मैच होती है तो वो अवसर के साथ बैठेंगे. ठीक है? ओके, नाउ both the shoulders at the back, go to your left, 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 both the shoulders at the back. और धीरे-धीरे नीचे जाना है. बहुत ज्यादा अगर नहीं जा पाए then it is okay, just stay there. जहां तक पहुंचे हो वहां तक सही करना है. गलत करने के बजाय सही करो और जहां पर हो वहीं पर रुक जाइए आप. ओके, इनहेल एंड एक्सहेल, both the shoulders at the back. अच्छी तरह से साइड बेंडिंग करना है. दोनों घुटने सीधे ही रहेंगे, बेंड नहीं करने. तो क्या हुआ कि जो अवसर थी वो अवसर ने पूछा और उसको समझ में आ गया. ओके, फिर दोनों घर गए और दोनों को इतनी जोरों से भूख लग रही थी तो घर जाके कहा कि मम्मी बहुत भूख लगी है, आज नाश्ते में भी आपने कुछ अच्छा नहीं दिया था, मैंने तो खाया ही नहीं. दोनों कह रहे थे ऐसा कि मैंने नहीं खाया, आप अभी मुझे अच्छा कुछ करके दो. मम्मी ने बोला कि अब तो मैं नहीं कर सकती, इतना काम है मुझे, आप 15-20 मिनट रुको, आप चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, फिर मैं देती हूँ. तो जो मान्यता थी उसको तो बहुत बुरा लग गया कि देखो मम्मी ऐसी है, मम्मी ऐसा ही करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं. और अवसर ने सोचा कि हाँ
यार मम्मी पूरा दिन काम करती है, कुछ तो काम होगा ना, चल ना हम कर लेते हैं चेंज, फ्रेश हो जाते हैं, फिर जाते हैं किचन में, कुछ होगा खाना शुरू करेंगे, तब तक तो मम्मी दे देगी। तो ये अवसर की थिंकिंग थी और मान्यता की थिंकिंग, है ना। आपका टाइम मैंने रखा है, सो स्टे इन योर आसन, स्टे इन योर आसन। ओके, फिर मम्मी आई और मम्मी ने अच्छा सा नाश्ता बनाया और दोनों को खिलाया कि चलो 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 मैं अभी बनाती हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, और दोनों को नाश्ता दिया और दोनों बहुत हैप्पी हैप्पी हो गए। पर हैप्पी होने से पहले मान्यता ने कहा क्या सोचा था और अवसर ने क्या सोचा था, राइट। ओके, 10 seconds left, you're doing good। त्रिकोणासन में इतना सारा रुकते हो भैया, आपको तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो ये टाइम खत्म हो गया। यस, नाउ अगेन पुट योर राइट लेग आउट एंड लेफ्ट लेग इन, राइट लेग आउट एंड लेफ्ट लेग इन। अब ये जो हम करने जा रहे हैं उसमें आपको थोड़ा पैर दूर रखना पड़ेगा। both the knees अभी तो सीधे है, but now what I'm going to do is I'm going to bend my right knee, क्योंकि मैंने right leg out रखा है। तो both the shoulders at the back, upper body ऐसे lean नहीं होना है, forward bending नहीं करनी है, it should be at the back and you have to bend your right knee। Can you see the right angle? It should be this much, इतना होना चाहिए। And now put your right hand down and left hand up, और सामने देखना है, मेरे सामने देखना है, आपको यहाँ रुकना है। डोंट पैम्पर योरसेल्फ, एवरीवन कैन डू इट। अगर आपका हाथ नीचे नहीं पहुंचता है तो आप कुछ ले लो, सपोर्ट ले लो, कुछ बुक्स ले लो, कुछ टेबल ले लो, वहां पर कुछ पिलो वगैरह ले लो, पर आपको रुकना तो है भैया, करना तो पड़ेगा। ये उत्थित पार्श्वकोणासन है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब बेनिफिट्स क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बेनिफिट सुन के आसन करना ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर कुछ भी अच्छा है तो वो कर ही लेना है हमें, है कि नहीं। ओके, तो यू स्टे इन योर आसन, ऑलरेडी योर 35 सेकंड्स आर गॉन, कर लो। ओके, तो ये बात हो गई अवसर और मान्यता की। अब मैं ये कहूंगी कि दोनों सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं तो सुबह तो हमेशा, बच्चे तो कैसे होते हैं ना, उठ ही नहीं सकते बेचारे, बहुत नींद आती है उनको, सुबह की नींद तो इतनी अच्छी लगती है, और मम्मी और पापा दोनों के पीछे पड़ जाते हैं कि उठो जल्दी, स्कूल नहीं जा रहा है, क्या कर रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हो जाएगी और आप लेट हो जाओगे, आपके कितने सारे लेसन चले जाएंगे, चलो चलो जल्दी उठो उठो उठो। तो दोनों उठते हैं पर मूड तो है नहीं, तो दोनों सोचते हैं कि अच्छा मम्मी ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन क्लास ही है ना, तो मैं थोड़ा मुंह ऐसे ठीक ठाक कर लेती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ, आपका फोन दे दो मुझे, ऑनलाइन लिंक कनेक्ट कर दो, मैं बैठ जाती हूँ। अवसर सोचती है कि नहीं ये बात गलत है, मुझे तो सीखना है, मुझे टाइम पास थोड़ी ना करना है ऑनलाइन क्लास में, मुझे सीखना है, मुझे सब कुछ आना ही चाहिए। तो वो कहती है नहीं मान्यता, चलो हम जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। मान्यता कहती है मैं नहीं करूंगी फ्रेश, मैं बैठी हूँ ऐसे ही बस, मम्मी मुझे दूध दे दो और मैं दूध पी के सीधा ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगी। अवसर कहती है कि नहीं, मैं तो फ्रेश हो जाऊंगी, मैं शावर ले लेती हूँ, नए कपड़े पहन लेती हूँ और फिर मैं बैठूंगी। तो वो सब करता है, आपका टाइम हो गया, रिलैक्स, आपके थोड़े थाइस पेन कर रहे होंगे, पर यहाँ आपको तय करना है कि whether you want to continue with this आसन or not। और आप ये छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं ना कि नहीं मुझे करना ही है, थोड़े पेन होता है तो होता है, that's okay but it is good, तो आप कंटिन्यू कर पाओगे। Now what you have to do is put your left leg out, right leg in, now put the shoulders at the back, bend your left knee, अभी ऐसे पीछे ही है, ऐसे में नहीं आई हूँ, पीछे है। Now what you have to do is put your left hand down and right hand straight and look at me and listen what I'm talking. Stay there for 2 minutes. हो जाएगा, आप कर पाओगे। एक बार डिसाइड तो करके देखो, आपका जो मन है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस आप ही हो ऐसे कि मन को पैम्पर कर रहे हो कि नहीं होगा यार, ये तो बहुत करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर पूरा दिन करना क्या है आपको, छोटे मोटे घर के काम करने, या फिर अगर आपका ऑफिस वर्क है तो क्या उसमें मजदूरी करनी है,
कोई लेबर वर्क तो है नहीं। एसी वाले रूम में आप चेयर और टेबल पे अच्छी तरह से बैठोगे और टेबल वर्क करोगे, भैया ये कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये हो गई बात कि अवसर ने कहा कि नहीं मैं तो तैयार होके बैठूंगी, जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था मैं पढ़ूंगी, आई वांट टू स्टडी, मुझे ऐसे टाइम पास नहीं करना है। अच्छा, अगर ऐसा एटीट्यूड रहा अवसर का, तो आप मुझे बताइए उसका रिजल्ट कैसे आएगा। और अगर मान्यता का ऐसा एटीट्यूड रहा कि भाई चलता है यार, कहाँ कोई देखता है, कोई नहीं देखता, कर लेते हैं ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा? You know that, right? So in our life, what we have to do is we want to stay with Manyata or we want to stay with ourselves. That we have to decide. अरे वाह, बस only 30 seconds left. You're doing good. Very nice. Good, 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 good. Very nice, very nice. And 25 seconds left. Good, 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 good. Keep it up, keep it up. Very nice. अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा कर रहे हो। Stay there in asana just for a few seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. हो गया। Now both the legs together. थोड़ा ऐसा करेंगे क्योंकि कब से हमने दोनों पैर दूर रखे थे, तो थोड़ा ऐसा कर लेंगे। अपनी जगह पे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, ऐसा हल्का सा थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे, दोनों पैर साथ में रख के। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज both the legs 1 foot apart and नीचे आना है, दोनों हाथ पीछे रहेंगे और जितना हो सके नीचे शरीर को छोड़ देना है। इनहेल एंड एक्सहेल, आपका जो जो थकान महसूस कर रहे हो वो चली जाएगी। What you can do is you can fold your hands to the front here. ऐसा भी कर सकते हैं आप। Stay there, stay there, stay there, stay there for few seconds, few more seconds. Stay there, stay there. आपकी थकान कम हो जाएगी। हो गया? Come back. Okay. अब क्या करेंगे? Again, right leg out, left leg in. Again, right leg out, left leg in. त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन, त्रिकोणासन, lock your knee. उत्थित पार्श्व कोणासन, bend your knee. त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन. You did it for 3 times and then come up. Now you are going to do on the other side. पहले त्रिकोणासन करेंगे, so both the knees are locked, legs are straight, both the shoulders at the back. त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन, त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन, त्रिकोणासन, उत्थित पार्श्व कोणासन, and come back. Now what we are going to do is, we are going to do परिवृत्त पार्श्व कोणासन. तो परिवृत्त आपको दिखाना है अगर, then I will have to stand like this. My right leg is out, left leg is in. I'm bending my right knee. Namaskar mudra, and turn to your right. Can you see that? ये वाला जो पार्ट है, right leg is exact right angle है. Now my concentration will be on my left last finger. मेरे पैर की जो लास्ट फिंगर है उसके ऊपर, उसको लिफ्ट नहीं करना है. And you have to stay here for 1 minute. आपके 10 सेकंड गए. एक पैर सीधा है, एक पैर बेंड किया हुआ है. Very good. Stay here for 1 minute.
Already 15 seconds gone. Stay there. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. 30 seconds gone. You are doing good. अभी आपका जो लोअर बैक है उसको बहुत अच्छी तरह से मसाज मिल रहा है. Also you are giving good massage to your intestine. तो लोअर abdominal है जहां पर अपान वायु का घर है तो उसको भी आप मसाज दे रहे हो तो वहां से वायु रिलीज होगा और आपका डाइजेशन अच्छा शुरू हो जाएगा. राइट. एंड 5 4 3 2 and relax. Yes. Now what we are going to do is again left leg out, right leg in. Bend your left knee. Namaskar mudra. Turn to your left and stay here for 1 minute. And your time starts now. तो आप हर कोई इंसिडेंस बनता है जो भी घर में होता है, घर के बाहर होता है, जो भी आपको समाचार सुनने को मिलते हैं उसमें से आपको तय करना है कि आपको कौन से सिस्टर के साथ रहना है. whether you want to stay with मान्यता or you want to stay with अवसर. अब आप मुझे ये कहोगे कि मान्यता क्या हो ही रहा है बाहर. देखो अहमदाबाद में कितनी बुरी हाल, कितना बुरा हाल है तो उसमें मान्यता का क्या, जो है वही तो हम मान लेते हैं. आप सही कह रहे हो, जो है वही आप मान लेते हो. पर उसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम कुछ पॉजिटिव थिंक करें, हम अवसर के साथ रहे और जो भी हो रहा है नेगेटिव उसमें भी हम कुछ इंटरप्रिटेशन अच्छा निकालें कि चलो भाई जो लोग नहीं मान रहे, जो लोग बाहर फिर रहे हैं, जो घर में नहीं रहे उनको हो रहा है तो अच्छा. रिलैक्स. 1 मिनट हो गया. रिलैक्स. तो अच्छा है कि अब आप बैठ जाइए वज्रासन में. वज्रासन में बैठ जाइए. तो जो लोग नहीं सुनते हैं, सरकार जो हमें कह रही है, बार बार कह रही है कि घर में रहो, घर में रहो, बाहर से ज्यादा चीजें मत खरीदो. और जो लोग नहीं मान रहे उनको कोरोना हो रहा है. अगर जो नहीं मान रहे हो रहा है तो अच्छा है कि उनको भी पता चल गया. अच्छा उनको तो पता चल ही गया क्योंकि उनको कोरोना हो गया. पर जिन लोगों को नहीं हुआ है उनको भी पता चल गया है कि भाई बाहर निकलने से ये होता है और बाहर की ज्यादा चीजें खरीदने से भी ये होता है. सो बेटर वी वांट टू बी सेफ. राइट. तो ये हुई इंटरप्रिटेशन. तो जो भी है, जो भी चल रहा है उसमें आपका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड. अगर मेरे हस्बैंड मुझे बोलेंगे या फिर मेरा बेटा या पापा मुझे बोलेंगे कि हेतल ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो पहले तो वो लोग बोल रहे हैं तो मैं सुनूंगी. आर्गुमेंट्स करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कभी भी. अच्छा मैं सुन लेती हूँ. फिर मुझे लगता है कि नहीं यार दिस इज वेरी गुड, देन व्हाट आई विल डू, I will stay with Avsar and then I will try to convince my father and son and husband कि नहीं इसमें मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है, ये करने से अच्छा होगा. अगर वो लोग कन्विंस हो ही जाते हैं, क्योंकि जब सही बात होती है तो लोग कन्विंस हो जाते हैं. आज नहीं तो कल कन्विंस तो हो ही जाते हैं. और कन्विंस हो जाते हैं and then if I follow what I want to do it and what I believe, तो तब जाके देखो मैं कितनी खुश होगी. अगर मैं उन लोगों को नाराज करती हूँ कि नहीं भाई मुझे ये लगता है मैं करूंगी ये, then I will be unhappy. राइट. तो हमें ये सोचना है कि हमें मान्यता के साथ रहना है या अवसर के साथ रहना है. तो जो अपॉर्चुनिटीज है उसको हमें ढूंढनी है. मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि बहुत सारे आपने स्टैंडिंग आसनास किए and now we are going to start Shiv Tandav. And before Shiv Tandav you need to relax your legs because again that is the sequence of standing asanas, so you need some strength. इसलिए मैंने आपको वज्रासन में बिठाया and you have to now stand up. मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ.
Stand on your left side of mat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, आपको स्टेप्स याद रखने हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. लास्ट टाइम में कर रहे हो, आपको स्टेप्स याद रखने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now start. 1, 2, Vrikshasana. 3, Virabhadrasana 2. 4, Parsvakonasana. 5, Ashwasanchalasana. 6, Ashwatanasana. 7, Trikonasana. 8, Virabhadrasana 1. 9, backward bending. 10, 11, 12.
1 2 वृक्षासन 3 4 5 6 7 त्रिकोणासन 8 9 backward bending 10 11 12 हो गया आपका डन रिलैक्स रिलैक्स बैठ जाइए आराम से। वज्रासन में अगर बैठोगे तो अच्छा है बिकॉज आपके काफ मसल्स प्रेस हो रहे हैं तो that is very good, but because of your knee pain if you can't sit in vajrasan then you can sit in sukhasan पलाठ लगा के भी आप बैठ सकते हैं। थक गए नहीं यार, आई नो आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप कैसे थकोगे चलो आप अभी रिलैक्स कर रहे हो एंड वी हैव 2 minutes फॉर रिलैक्स। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी कहती हूँ आपको, है ना? ओके तो 2 लड़के थे और दोनों लड़के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स। पर एक था 6 साल का और दूसरा था 12 साल का। वो दोनों में बनती बहुत थी, जहां जाते साथ में जाते। अगर एक की मम्मी कहती कि जाओ भाई सब्जी लेके आओ तो दोनों साथ में जाते। अगर दूसरे की मम्मी कहती कि जाओ भाई वहां इनको ये देना है तो वो पहले जाता अपने फ्रेंड के घर के चल 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 मेरी मम्मी ने कहा यहाँ जाना है तो तू भी चल मेरे साथ। दोनों साथ में जाते तो हर बार वो लोग साथ में ही सभी जगह जाते। तो ऐसे एक दिन वो लोग गांव के बाहर गए, खेलते खेलते बाहर हो गए और बाहर तो बगड़ा था, बगड़ा को क्या बोलता है आई डोंट नो बट इट वाज अ वेरी लोनली प्लेस और वहां पर एक कुआं था। तो दोनों वहां खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जो 12 साल का लड़का था ना वो कुएं में गिर गया। कुएं में तो पानी था तो वो तो अंदर से चिल्ला रहा कि अरे अरे मुझे बचा यार मैं मर जाऊंगा। वो 6 साल का लड़का बोला कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो उसको बचाना है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो अंदर से चिल्ला रहा है कि भैया मुझे बचा, मुझे निकाल, कुछ भी कर, तू किसी को बुला। तो उसने बहुत वैसे चिल्लाया, इतना शाउट किया कि भाई हेल्प हेल्प कोई है बचाओ, ये मेरा दोस्त गिर गया, कोई बचाओ। कोई आई नहीं बिकॉज़ इट वाज अ लोनली प्लेस। तो फिर उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं ही कुछ करता हूं, मुझे बचाना है उसके बस। तो वो ऐसे दौड़ते दौड़ते यहाँ गया वहां गया, सब ढूंढा था तो एक बड़ी सी रस्सी देखी उसने। तो वो लेके आया और रस्सी डाली अंदर और उसने कहा कि ये तो पकड़ मैं बाहर से खींचता हूँ। उसने कहा कि हाँ यार तो कुछ भी दे दे मुझे, मैं मर जाऊंगा यार। उसने कहा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। और उसने रस्सी डाली नीचे, उसने तो रस्सी पकड़ ली और वो 6 साल का जो लड़का है वो खींचता गया, बहुत भारी था। और उसने कहा कि भैया तू भी थोड़ी मेहनत कर ले, मैं भी कर लेता हूँ, तू बच जाएगा, मैं हूं ना यार, तू चिंता मत कर। और ऐसे करते 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 वो 12 साल का लड़का बाहर आ गया और दोनों इतने खुश हो गए पर दोनों रोने लगे कि बहुत घबरा गए थे। तो दोनों बहुत रोए बहुत रोए। फिर रोते रोते गांव में आए। तो गांव में जो वहां आते थे तो वहां पर थोड़े एल्डरली पर्सन्स वहां बैठे थे, सीनियर सिटीजन सब बैठे थे। तो उन्होंने देखा क्या हुआ, क्यों दोनों रो रहे हो, हर रोज तो कितना धमाल करते हो, मस्ती करते हो और आज रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। तो फिर उन्होंने रोते रोते बताया, वो 12 साल का लड़का था, उसने बताया कि इसने मुझे बचाया, मैं तो गिर गया था कुएं में, तो मरने ही वाला था पर इसने मुझे बचा लिया। और वो 6 साल का लड़का था, उसने भी कहा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने बहुत चिल्लाया, कोई आया नहीं हमारी हेल्प के लिए, पर मैंने उसको खींच रहा। तो सब हंसने लगे कि क्या यार स्टोरी बनाते हो, ऐसा कभी होता है 6 साल का लड़का, ये 12 साल का, इतने कुएं में से कोई बाहर निकाल सकता है, चलो यार कुछ और स्टोरी बना, आप गप्पे मत मारो। तब एक वहां पर एक एल्डरली पर्सन थे, सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको रुको रुको, हंसो मत, ये बच्चे जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। सब सोचने लगे कि क्या कह रहे हैं, ये 6 साल का लड़का ये 12 साल के लड़के को कैसे बचाएगा, कुएं में गिर गया था, ऐसा खड्डा नहीं था कि उसमें से बाहर निकालना है।
जो थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें दम है, क्योंकि ये 6 साल का लड़का वहां पर जो मेहनत कर रहा था, उसको वहां पर बस यही वो सोच रहा था कि मुझे इसको बचाना है। तो दैट बॉय वाज विथ अवसर, नॉट विथ मान्यता। मान्यता क्या है कि छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ये 6 साल का लड़का कुछ नहीं करेगा, तो ये मान्यता हो गई। पर वो 6 साल के लड़के ने सोचा कि नहीं, मुझे करना है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं ना, मैं करूंगा मैं। और वहां पर और कोई था नहीं उसको बताने के लिए कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे, तेरे से होगा ही नहीं है। तो ऐसा नेगेटिव भी कोई कहने वाला नहीं था। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं कर पाऊंगा, और उसने कर दिखाया। हमें अभी इन दिस पर्टिकुलर, इन दिस पेंडेमिक, हमें ये सोचना है। सभी जगह, स्पेशली इन अहमदाबाद, बहुत बुरी हालत है कि नहीं? पर ये बुरी हालत में हमें क्या करना है, आपको पता ही है। ओके फाइन। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए सोच के रखी थी कि मुझे आपको बताना है कि जो भी सिचुएशन है वो मान मत लो, उसमें से आप कुछ उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और करो, कुछ पॉजिटिव करो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, एंड यू विल बी फाइन, राइट? ओके। और अब हम दीवार के साथ 2 आसन करने जा रहे हैं, तो आपको खड़े होना पड़ेगा। तो प्लीज स्टैंड on your place. Okay. Now here is the wall. I am putting my right leg out, left leg in. त्रिकोणासन करना है, पर परिवृत्त त्रिकोणासन करना है। तो मैं क्या करती हूँ? My both the shoulders will be on the wall, and here you have to stay for 1 minute. 1 minute. Please stay for 1 minute. Find the wall, and your time starts now. है ना? थोड़ी सेकंड मैंने जाने दी इसलिए कि आप दीवार को भी ढूंढ लो, अपनी जगह बना लो, और वहां पर त्रिकोणासन करके आप परिवृत्त त्रिकोणासन में सेट हो जाओ। गुड, वेरी गुड। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। गुड 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 गुड, वेरी नाइस, यू आर डूइंग गुड। प्लीज स्टे देयर। उसी आसन में आपको रहना है। परिवृत्त त्रिकोणासन के भी इतने सारे बेनिफिट्स है, तो वो सब बेनिफिट्स मुझे आपको देने हैं। आप ले लो, पर कब लोगे? आप उसके लिए मेहनत करोगे, तभी तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और आप मेहनत कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। Only 7 seconds left. See, you did it. Very nice. Relax. Right? And now on the other side. So for that, what you need to do is both the legs apart, left leg out, right leg in, and now turn to your wall. और right hand नीचे जाएगा, left hand ऊपर जाएगा. Both the shoulders will be near the wall. और आपका मैं टाइम शुरू करती हूँ now. So again, you have to stay there for 1 minute. Good, good, good. ये तो सभी कोई कर सकता है। जिनको घुटने का दर्द है वो भी कर सकते हैं, जिनको बैक पेन है वो भी कर सकते हैं। सबके लिए ये अच्छा है, तो आप ये कर लो प्लीज, देखते मत रहिए, आप कर लो। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। और आज मैंने जो बातें की है 2 सिस्टर्स की, मान्यता और अवसर, वो बातें पूरा दिन आप याद रखिए, और आप ढूंढिए कि ये जो बात हुई, ये जो घटना हुई, उसका आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो। इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मान्यता के साथ हो या अवसर के साथ हो, ये आप मुझे ग्रुप में लिख के बताना। और मुझे अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि आप मान्यता के साथ रहते हो, एंड देन आल्सो यू आर राइट, तो राइट डाउन द ग्रुप। मैं पढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी, मेरी कहाँ गलती हो रही है। Relax, and now you have to sit. Finally, you have to sit for pranayam. और प्राणायाम के लिए मैं जब बैठती हूँ तो मैं एक बोल्स्टर के ऊपर बैठती हूँ। So I'll get the bolster. Here is the bolster. उसके ऊपर मैं बैठती हूँ। सीधा बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है।
My lower back is touching the wall. प्राणायाम करेंगे। अब आपको पता है कि अभी गर्मी की सीजन तो है, पर आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना ही है और बहुत नहीं करना है, 2 राउंड ही करने हैं। एंड यू नो एवरी डे वी डू 40 काउंट्स इन वन राउंड, 40 काउंट्स इन सेकंड राउंड, तो ये आपको करना है। एंड विदाउट doing any movement of your hands you have to do this. So it will be a short breathing, fast breathing, forcefully breathing, right? 40 times. So close your eyes, concentrate on your breathing. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, right? 40 times. Start. You have to do for 40 times. 40 बार आपको करना है. Take a break for a while and then start second round 40 times. Normal breathing. Okay. Now we are going to do Ujjayi Pranayama. Ujjayi Pranayama, as you know, inhale from nose and exhale from nose. But you have to feel the pressure your thyroid gland. तो सांस जो नीचे जाएगी तो एक आवाज आएगी और जब बाहर निकलेगी तो भी एक आवाज आएगी. तो मैं करती हूँ, आप भी शुरू कीजिए. And this we are going to do for 2 minutes. 2 मिनट तक हम ये उज्जयी प्राणायाम करेंगे. तो पहले मैं बता दूं आपको. ओके. And now your time starts. Keep doing, please. Concentrate on your breathing. Keep your mouth closed. You have to inhale and exhale from your nose. Twenty-five seconds left. Keep doing, please. Ujjayi Pranayam is very good. It works on thyroid and thymus gland, and that is good for our immunity. And also, it is good for thyroid. Those who have thyroid, hypo and hyperthyroid, it balances the secretions.
Relax. Very nice. Okay. तो अब हम एक और प्राणायाम करेंगे. वैसे every time for each and everyone this Kapalbhati is not good. सभी के लिए अच्छा ऐसा नहीं है. आपकी प्रकृति क्या है उसके ऊपर निर्भर है कि आपके लिए कपालभाति अच्छा है कि नहीं है. पर इन स्पेशली इन दिस पीरियड जबकि सभी जगह इतने वायरस फैले हुए हैं और हमें अपने आप को बचाना है, सो जस्ट ड्यूरिंग दिस डेज वी विल प्रैक्टिस कपालभाति. तो कपालभाति में एक बार सांस लेनी है और फिर सांस को छोड़नी है. मुंह बंद ही रहेगा. आई एम प्रैक्टिसिंग. आप प्लीज ऑब्जर्व कर ले, आप देख ले, समझ ले. And then again we are going to do this for 2 minutes. Right? And your time starts now. कर रहना है. Please keep doing it. कपालभाति चालू रखनी है. कपालभाति चालू रखेंगे. आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा. You will feel fresh. इतने सब कुछ आसन किए, प्राणायाम किया, you will feel good. आपका मूड भी बना रहेगा. क्योंकि whenever we do आसन प्राणायाम our all endocrine glands get active. तो वो जो endocrine glands है especially हमारी जो पिट्यूटरी और pineal gland है जो सर में है, तो वो एक्टिव हो जाती है. Because of that we feel fresh, we feel good, हमारा मूड बना रहता है. 25 seconds left, so please keep doing it. आपको याद है ना मुझे क्या रिप्लाई देना है? आपको मुझे ये रिप्लाई देना है. आप मान्यता के साथ रहना पसंद करोगे या अवसर के साथ रहना पसंद करोगे? And whole day you try to observe your thinking. हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो वो मानना है कि नहीं मानना है. हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, तो ये जज नहीं करता है. राइट? वो एक कहावत है ना, 100 बिल्ली मार के 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली. लो, कोई अगर है गुस्सा वाला है और कोई अगर बहुत नेगेटिव है, कोई अगर हर बार किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है, पर वो आदमी अगर अच्छा बर्ताव करता है, हंस के बात कर लेते हैं, अगर ऐसा करता है तो हम क्या लो 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली. इतना तो बुरा कर लिया, अब देखो अरे भैया वो हज को तो चली, वो अच्छा तो होने लगा. ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट पर्सन. है कि नहीं? क्यों हमें किसी को जज करना है और नेगेटिव सोचना है? नहीं सोचना है. राइट? ओके. So now we are going to do relaxation and meditation. तो relaxation में आप अपनी जगह पे लेट भी जा सकते हैं. आप लेट जाइए शवासन में. And if you are not much tired, तो आप जहाँ पर भी बैठे हो, चेयर पे, सोफा पे, ऐसे दीवार के पास बैठे हो, तो अच्छी तरह से दोनों शोल्डर्स और बैक को लीन यहाँ कर दो. टच करेंगे, हमारी पूरी बैक टच होती है. And especially the lower abdomen, lower back, वो टच करेगा. और सेट करना है, पूरा हमारा बॉडी सेट करना है. ऐसे बैठ जाएंगे तो सेट नहीं होगा, यहाँ पर गैप हो जाएगा. Then you have to set your lower back, your buttocks, your hips, or the shoulders, middle back, everything is with the support, and both the elbows are touching here, and put your palms open to sky on your thighs. Right? Okay. Now close your eyes.
Close your eyes. Please close your eyes. Because now you have to start your inner journey. You don't have to look at me. You don't have to do some asanas. Just close your eyes and be with your own self. Deep breathing. बहुत लंबी गहरी सांसें लेनी है. Very slow, soft and deep inhalation. And very slow, soft and long exhalation. आराम से लंबी गहरी सांसें लेंगे और उतनी ही लंबी सांसें बाहर निकालेंगे. Deep breathing. Deep breathing. जो सांसें अंदर जा रही है, एक एक ब्रेथ है, the single breath. ये सांस हमारे शरीर की पूरी सिस्टम को एक्टिव कर रही है. ये वही सांस है जो आपके मन को शांत और आनंदित कर रही है. ये वही सांस है जो आपको जीवंत रखती है. ये वही सांस है जिसके आपका मूड अच्छा रहता है. जो डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका मूड अच्छा ही रहता है. जो शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं वो जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है. पर अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपको किसी से बुरा नहीं लगेगा. Very slow, soft, deep inhalation. Very slow, soft, long exhalation. ब्रीदिंग चालू रहेगी. हमें बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे शरीर में जो भी पेन था वो पेन अभी नहीं है. मैं जब सुबह उठी थी तो मेरा मूड खराब था, पर अब मेरा मूड बहुत अच्छा है. मैं जब सुबह उठा था तो मेरे मन में बहुत चिंताएं थी, पर अब वो नहीं है. मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है. मेरा मन शांत और प्रफुल्लित हो रहा है. मेरा मन प्रसन्नता से भर गया है. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Deep inhalation, long exhalation. Deep inhalation, long exhalation. आपने इतने सारे आसनास किए हैं, उससे आपको शरीर को जो भी श्रम लगा होगा
जो थकान महसूस कर रहे होंगे वो पूरी थकान अब जा चुकी है, आपके शरीर में कोई थकान नहीं है। यू आर फीलिंग एनर्जेटिक, यू आर फीलिंग वेरी गुड। अब आप जो जगह पे हैं, आंखें बंद हैं, आंखें बंद ही रखनी है, खोलनी नहीं है। एंड वी आर गोइंग टू चैंट ओंकार। तो ओंकार का चैंटिंग करेंगे, सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। और हर बार हम मकार का जो उच्चारण है वो ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टे इन योर सेम पोजिशन, कीप योर आईज क्लोज एंड इनहेल एंड ओंकार। आंखें बंद ही रहेगी और हम प्रार्थना करेंगे। Put your hands together. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands and put it on the eyes. And then you can open your eyes. So here we end our session. See you tomorrow morning. And till then, stay home, stay happy. That is more important thing. Stay happy. Bye.